Good morning, students. Today our topic is Kirchhoff rules. पहला रूल का बोल सकते हैं junction rule also can say that. What is the Kirchhoff first rule means that in electric circuit sum of all the currents is equal to zero at that point. उसको point का बोल सकते हैं junction. कौन सा एक point ऐसे circuit junction उससे junction में sum of all the currents is equal to zero. अब इस example में देखा जाए तो there are four currents. कुछ currents इस junction के पास आ रहे हैं, कुछ currents junction से दूर जा रहे हैं. ठीक. अब sum of all the currents means है इधर आप एक कंडीशन ऐड करना पड़ेगा. Which currents are coming towards junction can be taken as a positive, which are moving away can be taken as a negative. इसमें हम देखिए current I1, the current I1, current I1 is coming towards, therefore plus I1, and current I2 is going away, minus I2, and current I3 is coming towards junction, plus I3. Current 4 is going away, that is a minus I4 is equal to 0. That all I2, sum of all the currents is equal to 0. ठीक. इसके बाद अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 plus I3 is equal to I2 plus I4. अब ध्यान से देखिए I1 plus I3 क्या होगा? I1 plus I3 sum of the currents which are coming towards junction. You can see sum of the currents which are coming towards junction is equal to sum of the currents which are moving away from the junction. ठीक. I1 plus I3 means that sum of the currents which is coming towards sum of the currents which are coming towards junction is equal to sum of the currents which are leaving away from the junction. So that is the first rule of the Kirchhoff first rule. लेकिन इसमें आपको क्या कंजर्वेटिव होगा आप ऐड करना पड़ेगा. इसमें चार्ज कंजर्वेटिव होगा. ठीक है, क्या कंजर्वेटिव होगा? चार्ज कंजर्वेटिव होगा. दिस इज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ ए फर्स्ट रूल ऑफ ए Kirchhoff का फर्स्ट रूल. ठीक है, Kirchhoff rules में there are the two rules are there. Kirchhoff rules are the two. First rule is junction rule. Junction rule में क्या बोलेंगे? In an electric circuit sum of all the currents is equal to zero. ठीक. इसमें अब हमने एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया था. इसमें देखना there are four currents. Some currents are coming towards junction. Some currents are moving away from the junction. Which are coming towards the junction can be taken as a positive. Which are moving away can be taken as a negative. हमने ऐसे देखा है सम ऑफ ऑल द currents is equal to 0. उसके बाद आपको एक और इक्वेशन बनेगा I1 plus I3 is equal to I2 plus I4. Here I1 I3 which are coming towards junction, that means sum of the currents which are coming junction is equal to sum of the currents which are moving away from the junction. And इसमें कौन सा कंजर्वेटिव? चार्ज इज कंजर्वेटिव. And second rule, what is the second rule? Kirchhoff's second. Let us combine voltage rules. First I'm making one diagram. Now, so I have taken an example. So this is the one circuit, electric circuit हमने लिया था. Then what is the second rule? Okay, otherwise you can say that the voltage rule. Okay, voltage rule you can say that. In any circuit, sum of the product of current and resistance is equal to sum of the EMFs. Sum of the EMFs. That means you can add sigma IR is equal to sigma E
sigma E net EMF in any electric circuit. Sum of product of current and resistance is equal to sum of the EMF in that circuit. इसमें आप देखिएगा तो we can see that two circuits. This is the first circuit and this is the second circuit. First circuit and second circuit. ठीक. अब इसमें आप you can start the circuit from wherever you want. It's not a problem. Suppose I'm starting from A. तो पहला लूप उसको हम बोल सकते हैं लूप रूल भी बोल सकते हैं. ठीक. इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो there are two loops are there. How many loops are there? Two loops. First loop. Suppose you are taking the first loop. This is the first loop. Take the first loop. First loop. First loop. Now देखिएगा तो suppose I have taken the loop is A B C D A B C D. कहाँ से start किया? A से. कहाँ end होना है? A पर. ठीक है. अब देखिए इसमें rules क्या करना पड़ेगा. Whenever you are traverse, okay, along the current direction. ठीक है. अब ऐसे traverse कर रहे हैं. ठीक है. Along the current direction. In this case, the product of current and resistance can be taken as a positive. Okay, that is for the current thing. And EMFs के लिए whenever you are traverse from negative terminal electrode to the positive electrode, we have to take the positive. No sir. So I started from A. Now your finger is moving like this. Now sir, your finger is moving like this. When your finger is moving, this means that आपका finger में sir और traverse direction. Current opposite मारे. Current I2 कहता है current I2 opposite. हमने बोला था कि finger की direction, traverse direction, current direction both are same, both are positive. लेकिन अगर your finger ऐसे जा रही है, लेकिन current opposite मारे. So therefore what is it? Minus I2 R2. क्या लिखेंगे? Minus I2. Current opposite I2. R कितना? R2. That is a minus I2 R2. And उसके बाद left में क्या लिखेंगे? लेफ्ट में हम लिखेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. राइट में क्या लिखेंगे? सम ऑफ द ईएमएफ. अब इसके ईएमएफ क्या होगा? अब ऐसे जा रहे हैं ना, ये तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड. हमने रूल बताया था नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो प्लस लिखना पड़ेगा. लेकिन अगर आप जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो लंबा लाइन में इंडिकेट करेंगे हाइड पोटेंशियल दैट इज पॉजिटिव. एक क्या मानेंगे? नेगेटिव. हमने आप लोगों को रूल बताया था नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जाएगा तो प्लस लेंगे, लेकिन अगर ऑपोजिट जा रहे हैं ऑपोजिट मतलब माइनस E2 आप लिखेंगे. ठीक. उसके बाद यहाँ पर आया था, यहाँ से मोड़ के ये पहले A to B गया तो उसके बाद B to C, अब C to D आ रहे हैं. अब देख लीजिएगा आपका फिंगर डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन बहुत आर सेम होगा तो मैं क्या बोला था? प्लस लिखना पड़ेगा. हमने बोला था प्लस I1 R1. ठीक. अब इधर आने के बाद अब देखना EMF बैटरी का देख लीजिएगा. You are moving from negative electrode to the positive electrode. Negative electrode to the positive electrode आप traverse करेगा तो क्या लेना पड़ेगा? प्लस E1. This is the first circuit. अब ऐसे लिख सकते हैं I1 R1 minus I2 R2 is equal to E1 minus E2. ये तो पहला सर्किट का. Then my point. रूल्स कैसे लेना है? प्रोडक्ट ऑफ I और I मल्टीप्लाइज R कैसे लेना पड़ेगा? सो योर फिंगर का डायरेक्शन means your travels along with the current. In this case प्रोडक्ट ऑफ current and resistance तो पॉजिटिव. ठीक. ऑपोजिट में हो तो माइनस होगा. ठीक. सिमिलरली EMF के लिए आपका फिंगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में जाएगा तो पॉजिटिव, उसमें उसके ऑपोजिट होगा तो माइनस. तो पहले लूप का एक्सप्लेन किया था. एंड सेकंड लूप आप देख लीजिएगा. सेकंड लूप ओपन है तो सेकंड लूप दैट इज A E F B A F B है ना. तो हम बैठेंगे सेकंड लूप. सपोज इफ यू टेक सेकंड लूप दैट इज A E F B. इसमें भी कौन सा क्लॉक? एंटी क्लॉकवाइज. डायरेक्शन कटे देंगे दैट इज द रूल. On your wish, इसमें हमने लिया था एंटी क्लॉकवाइज. सो एंटी क्लॉकवाइज में सर A E F B है. अब देखें ना, ये तो जंक्शन है, यहाँ से करंट करता है I1 आ रहा है, यहाँ से करंट करता है I2. ये दोनों मिलाकर खुद मिलाकर करता है I1 plus I2. बराबर I1 plus I2. गट में कौन? तो जंक्शन तो पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया था ना. इधर से करंट I1 आ रहा है, इधर से करंट I2. ये दोनों
टुवर्ड्स द जंक्शन, हम कैसे लेंगे करंट, सम ऑफ द करंट्स I1 प्लस I2। अब ये दोनों करंट्स मिला करके इसमें आ रहे हैं। आप इसमें देख लेना, पहले ए से ई तक जा रहे कुछ नहीं, इधर आपने इधर जा रहे करंट का डायरेक्शन, अब करंट का डायरेक्शन ना, अब करंट का डायरेक्शन फिंगर का डायरेक्शन बोथ आर द सेम, बोथ आर द सेम हो, उन्होंने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ करंट प्लस रेजिस्टेंस पॉजिटिव लेना पड़ेगा। फिर सम ऑफ द करंट मींस हियर I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइज R3, ठीक। हाँ, यहाँ से जाएगा तो मोड के अगेन ऐसा है, A to E, then E to F, then F to B and F to B to A आ रहे हैं। A आने के समय अब देखिए करंट का डायरेक्शन तो फिंगर का डायरेक्शन बहुत आसान है, तो दैट मींस आप क्या लिखेंगे, करंट I2 रेजिस्टेंस R2 is equal to EMF। EMF देख लेना, ये तो नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आप जा रहे हैं, आप क्या लिखेंगे प्लस प्लस E2। दिस इज द सेकंड सर्किट, ठीक। इतना ही। अब इसको हम बोलेंगे लूप रूल भी बोल सकते हैं। इसे लूप रूल में क्या कंजर्वेटिव होगा, मींस एनर्जी कंजर्व होगा, ठीक है। इसमें क्या कंजर्व होगा, मींस एनर्जी कंजर्व। दिस बोथ रूल्स यू हैव टू कहते हैं इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ रूल्स आर इंपॉर्टेंट है, लूप रूल एज वेल एज जंक्शन रूल। जंक्शन रूल में आपने देखा होगा सम ऑफ द करंट्स इज इक्वल टू 0, ऐसे भी बता सकते हैं सम ऑफ द करंट्स व्हिच आर कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स व्हिच आर लीविंग द जंक्शन। क्या कंजर्व है उसमें, चार्ज कंजर्व है, एंड लूप रूल में क्या कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है, ठीक है। लूप रूल में क्या कंडीशन लेना पड़ेगा, आपका ट्रैवल्स डायरेक्शन अलॉन्ग विद द करंट होगा तो आप लेना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ I मल्टीप्लस R कैन बी टेकन एज पॉजिटिव। आपको ट्रैवल्स डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो माइनस लेना पड़ेगा। एंड EMF कैसे कब पॉजिटिव लेंगे, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, टेकन एज पॉजिटिव, उसका ऑपोजिट होगा तो माइनस। दैट्स इट, दिस आर द टू रूल्स ऑफ द two rules, Kirchhoff two rules, first rule and second rule. Okay, thank you.